Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let's learn some calculation about our planet Earth. The first question is about the age of the Earth. Our Earth, according to the radiometric dating estimation, came into being around 4.5 billion years ago, and life on it around 4.2 billion years ago. Now, being a good student, you wanted to know about the radiometric dating technique. तो अगर आप रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन एक दूसरे वीडियो में दी गई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. Let's move towards the other question. Do you know what is the shape of the Earth? Yes, the answer is geoid. The answer is geoid. Geoid is a Greek word. Just to understand, we can assume that geoid as a combination of two words, geo plus id. Geo means earth, as you already know, and id is the abbreviation of identification, यानी शनाख्त. चूँकि ज़मीन की शेप या शक्ल सिर्फ इसके जैसी है, यानी ये अपनी शनाख्त खुद है, इसके जैसी कोई और शेप नहीं है, इसलिए इसे जियोइड कहा जाता है. यानी हम कह सकते हैं द जियोइड इज़ अ शेप लाइक द सरफेस ऑफ द अर्थ. यानी कहीं पे बहुत ज़्यादा एलिवेशन है तो कहीं पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है. लेकिन for practical purposes, a simple shape is used because that makes calculation easier. So this shape is called a reference ellipsoid. Therefore, in basic education, the shape of the earth is described as being like an orange or a sphere but wider around the equator. While geoid is the shape that ocean and a continental surface would take under the influence of the gravity and rotation of the earth when winds and tides are neglected. I hope you understand the shape of the earth, that is geoid. Let's move towards our next question, that is about the circumference of the earth. But tell me first, if you ever measure your waistline, अगर आपने अपनी कमर का कभी माप लिया है तो आपने मुशाहिदा किया होगा कि how did you take the measuring tape all around your waistline. In the same way, the earth's circumference is the distance all the way around the earth. If you are taking the measurement around the equator, then the value is equatorial circumference. And if you taking this value around the or measurement, and if you are taking the measurement around the polar region, then this value is called the polar circumference. And if you are taking this measurement around the polar region, then this value is called the polar circumference. And if you are taking this value around the polar region, then it is called polar circumference, which is 40,800 kilometers, and the equatorial circumference is 40,075 kilometer. The difference between these two circumference is 67 kilometers. ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि हमारी ज़मीन इक्वेटर पर से बल्जिंग है, बिल्कुल इन अंकल के बैली की तरह है. तो इस वजह से जब हम इक्वेटर पे ये मेजरमेंट लेते हैं तो
67 किलोमीटर्स ज़्यादा आती है, जबकि पोलर रीजन पर से हमारी ज़मीन कुछ पिच की हुई है, यानी दोनों कुतबैन पर हमारी ज़मीन पिच की हुई है, तो इस वजह से वहाँ पर मेजरमेंट कुछ कम आएगी। चलिए अब इन मेजरमेंट्स को याद भी कर लेते हैं। क्या है, आप कोई सीक्वेंस याद कर सकते हैं, लाइक आप 40075 किलोमीटर्स याद कीजिए कि कर लें, या आप इस तरह याद कर लें कि दोनों में 400 आता है और लास्ट के जो 2 डिजिट है उनका डिफरेंस है, इधर 75 है और यहाँ 08 किलोमीटर। तो कुछ भी याद करना मुश्किल नहीं है, बस आप इसको फ़ोन नंबर की तरह याद कर लें, या इन नंबर्स को बार बार लिखिए और या इनके अंदर सिमिलैरिटी को देख लें या डिसिमिलैरिटी को देख लें, तो कोई भी लंबे से लंबा नंबर आपको याद हो सकता है। ज़मीन के सरकमफेरेंस को उर्दू में मोहीत कहते हैं, और इस मोहीत की मेजरमेंट एक यूनानी जोग्राफर ने ली जिसको एरिस्टोसीन कहा जाता है। अच्छा, अब एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट 40 डिग्री लैटिट्यूड, तो इसका आंसर है 30,600 किलोमीटर्स। इस आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं इक्वेटर से, या साउथ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सरकमफेरेंस में कमी वाक़या होगी या ज़्यादती वाक़या होगी, तो जवाब होगा जी हाँ, वो रिड्यूस होगा उसका साइज़। क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी लंबाइयों में कमी वाक़या होती चली जाती है, यहाँ तक कि ये नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर बिल्कुल ज़ीरो रह जाते हैं। Let's move towards our other question, that is about the diameter. Diameter is the distance from one side to the other through the earth's center. यानी इस लाइन को ज़मीन के सेंटर में से गुजरना ज़रूरी है, यानी एक ऐसा ख़त जो ज़मीन के दो पॉइंट्स को तो टच करे, यानी सरकमफेरेंस के, जैसे ये एक पॉइंट है, इसको ये टच कर रहा है। मैं यहाँ से ये ले लूँ तो आपको नज़र आ जाएगा, ये देखिए, ये देखिए, अगर इस जगह को और इस जगह को ये यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। अगर मैं एक ऐसा लाइन खींचूँ जो कि सेंटर में से ना गुजरे, लेकिन जो स्फीयर अर्थ है इसके 2 पॉइंट्स को, यानी सरकमफेरेंस के किसी 2 पॉइंट्स को तो टच करे, तो हम इसको कोड कहेंगे। हम इसको इक्वेटर नहीं, हम इसको डायामीटर नहीं कहेंगे, क्योंकि डायामीटर को सेंटर में से गुजरना ज़रूरी है ज़मीन के। तो इधर भी वही सीन है कि पोलर सरकमफेरेंस जैसे था, इक्वेटोरियल सरकमफेरेंस जैसे था, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी पोलर डायामीटर और हम इक्वेटोरियल डायामीटर लेंगे। तो यहाँ पोलर डायामीटर, इक्वेटोरियल डायामीटर दिया गया है जो कि 12,756 किलोमीटर है इक्वेटर पर, और पोलर डायामीटर जो है 12,714 है। कुछ किताबों में ये वैल्यू डिफरेंट दी हुई है, जैसे कुछ बुक्स पे लिखा हुआ है 12,757 और पोलर डायामीटर को 12,713 दिया हुआ है। तो बहरहाल आप ये वाली जो है वैल्यूज़ ले लें, क्योंकि ये जो है नासा से ली गई हैं, नासा की वेबसाइट से ली गई हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ में भी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है जी, इन दोनों वैल्यूज़ में भी डिफरेंस आ रहा है, और ये डिफरेंस बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपके जो है सरकमफेरेंस में आ रहा था। यहाँ भी ज़ाहिर है बात वही है कि हमारी ज़मीन इक्वेटर पर से बल्जिंग है, इस बल्ज की वजह से जो है हमारी ज़मीन इक्वेटर पर से इसका डायामीटर ज़्यादा है।
अब रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस जो है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल और अ स्फीयर इज एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम इट्स सेंटर टू इट्स सर्कमफेरेंस, यानी सर्कमफेरेंस का कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी। तो लेकिन इसको इसके सेंटर को ज़रूर टच करना है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक, ठीक है, एनी पॉइंट। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज हाफ द डायामीटर, हम कह सकते हैं d/2 इज इक्वल टू r, ठीक है जी। तो ये हाफ होता है क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो ये डायामीटर बन जाएगा, क्योंकि डायामीटर एक ऐसी लाइन है जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को छुए लेकिन सेंटर में से गुजरे। तो ज़मीन का डायामीटर यहाँ रेडियस दिया गया है, और रेडियस इक्वेटर पे दिया गया है 6378.1 किलोमीटर, और पोलर डायामीटर दिया गया है 6357.8 किलोमीटर। तो बहुत सारी किताबों में इसको अगर हम राउंड करके दिया हुआ है, लाइक कुछ बुक्स में जो पोलर है उसको दिया है, चूँकि ये 0.8 है, तो जब 0.5 से 0.5 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम एक नंबर बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये 6357 राउंड करके हो गया। और जबकि आपका इक्वेटोरियल जो है वहाँ पे 0.1 है, तो जब 5 नंबर से कम होता है, 0.5 से कम हो, तो फिर हम नंबर को बढ़ाते नहीं बल्कि वही रहने देते हैं। तो इस तरह ये 6378 हो गया। तो इनका डिफरेंस जो है 21 किलोमीटर आ रहा है, क्योंकि इक्वेटर पे फिर वही सूरत हाल है कि इक्वेटर पे से बल्जिंग है। तो यहाँ पे मैंने माइल्स में भी वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं, किलोमीटर्स में भी, लेकिन आप लोगों के लिए बेटर यही होगा कि आप जो है मैट्रिक सिस्टम को ही फॉलो करें, यानी मीटर्स और किलोमीटर्स में वैल्यूज़ को याद करें। जब आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर माइल्स को भी याद कर लें तो अच्छा है। अगर जी, द इक्वेटोरियल रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6378.14 किलोमीटर। सेलेक्ट द आंसर इन मीटर्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन एक्सप्रेस टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट दिया हुआ है दैट इज 6.378 इंटू 10⁻⁶। तो अगर आपको इसको सॉल्व करने के लिए आए तो ये आपको पता होना चाहिए 10⁶ कैसे आया। क्योंकि देखिए आप पहले किलोमीटर्स को कन्वर्ट करें अगर मीटर्स में, तो आपको पता 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अगर हम इस 1000 मीटर्स को पावर्स में लिखते हैं तो 10⁻³ हो जाता है, 10⁻³ अच्छा, यहाँ आप डेसिमल्स जो हटाएंगे 6378.14, तो हमें ये डेसिमल उठा के कहाँ लेकर जाना है, 6 के पास लेकर जाना है। तो यहाँ भी 3 डिजिट्स ये इसने मूव किया, तो रेज़ टू पावर क्या हो गया 3। अब जब हम इसको इस किलोमीटर्स, ये अभी तक किलोमीटर्स में है, अब जब हम इसको इस किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ के साथ, यानी 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा आंसर मीटर्स में आ जाए। तो आपको पता है जब पावर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो पावर्स जमा हो जाती हैं। तो इस तरह से आंसर हो गया 6.378 10⁻⁶। Now let's talk about some distances. The difference between Earth and the Sun is 150 million kilometers. ज़मीन और सूरज के दरमियान 150 मिलियन किलोमीटर का फासला है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत इजी है, शायद इसी वजह से। तो ज़मीन और सूरज के दरमियान 150 मिलियन किलोमीटर का फासला है, यानी 150 मिलियन किलोमीटर।
ज़मीन और सूरज के दरमियान फासला है 150 मिलियन किलोमीटर्स। 150 मिलियन किलोमीटर्स। अब आप सब जानते हैं कि हमारी ज़मीन जिस रास्ते के ऊपर सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है उसको ऑर्बिट कहते हैं, और इसका ऑर्बिट बिल्कुल गोल नहीं बल्कि एलिप्टिकल है। एलिप्टिकल होने की वजह से ज़मीन जब सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है तो 2 पॉइंट ऐसे आते हैं जिनमें से एक पॉइंट पर ज़मीन सूरज के करीब तरीन हो जाती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे होती है, और एक मूवमेंट ऐसी आती है जब सूरज और ज़मीन के दरमियान फासला ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इन्हीं दो फासलों का एवरेज जो है अभी हमने डिस्कस किया कि ज़मीन 150 मिलियन किलोमीटर्स के फासले पर है। ये जो इनका डिस्टेंस हमने अभी बताया। अब ख़ास किस्म की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं दूर फासले के लिए और करीब फासले के लिए। तो 2 टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं, पेरीहीलियन एंड एफीहीलियन। Perihelion is the combination of 2 Greek words, peri, which means near, and helion, which means sun. इसी तरह दूसरी टर्म हम जो इस्तेमाल करें वो है एफीहीलियन। It is again the combination of 2 words, af and helion. Af mean away या far भी कह सकते हैं, और helion again sun. तो एफीहीलियन वो फासला जब आप सूरज से या आपकी ज़मीन सूरज से दूर तरीन है फासले पर है, और पेरीहीलियन वो फासला जब आप सूरज के करीब या आपकी ज़मीन सूरज के करीब तरीन है। और ये 2 फासले यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है, जिनका एवरेज हमने निकाल के अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स कर दिया। Let's discuss some question about it. When the earth is at its maximum distance from the sun, it is said to be in, yes, the answer is aphelion. G, aphelion is the point of the earth orbit that is farthest away from the sun, and that event happened on the 4th of July, और कुछ जगहों पे 3rd of July भी लिखा आपको मिलेगा। बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि जुलाई के मंथ में अर्थ जो है बहुत यानी ज़्यादा दूर तरीन फासले के ऊपर सूरज से होती है। द सेकेंड टर्म इज पेरीहीलियन, और क्वेश्चन है जी द पोजिशन ऑफ द अर्थ when it is at its maximum distance from the sun is called, जी हाँ, the answer is perihelion. Perihelion always happen in early July. ये 3rd जनवरी भी हो सकता है, 4th जनवरी भी हो सकता है, 5th जनवरी भी हो सकता है। तो अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन, ज़मीन आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होती है सूरज से। लेट्स टॉक। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंथ में जो है ज़मीन आपकी सूरज के करीब तरीन होती है। तो आपका जवाब होगा यकीनन जनवरी, लेकिन एग्ज़ामिनर आपसे या वाइवा करने वाला या इंटरव्यू करने वाला आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई जनवरी में तो सर्दी होती है बहुत, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चूँकि हम रहते हैं तो ज़ाहिर है इसी रेफरेंस हमसे पूछा जाएगा। तो आपका जवाब ये होगा कि सर्दी तो होती है। सर्दी होने की वजह ये है कि सूरज की डायरेक्ट शुआएँ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही हैं, और आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की शुआएँ तिरछी पड़ रही हैं, स्लांटिंग पड़ रही हैं, इस वजह से सर्दी है। और ये रीज़न नहीं है कि सूरज जो है आपके करीब है ज़मीन के या दूर है, दिस इज़ नॉट द रीज़न। अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं एंड टॉक अबाउट द सम डिस्टेंस
डिस्टेंसेस ऑफ मून एंड प्लैनेट, के हमारा चांद ज़मीन से कितने फासले पर है. What is the distance between the earth and the moon? The question could be asked from you. तो average distance to the moon जो है 3,82,500 किलोमीटर्स है जी. 3,82,500 किलोमीटर्स. तो यहाँ भी आप इस फिगर को फ़ोन नंबर की तरह याद करेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा. अच्छा, यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसे ही है कि चूँकि हमारा चांद भी आपके जो रिवॉल्व करता है आपकी अर्थ के इर्द गिर्द, तो इसकी जो ऑर्बिट है वो भी एलिप्टिकल है. और एलिप्टिकल ऑर्बिट इसका होने की वजह से ये भी बिल्कुल ज़मीन और सूरज की तरह एक वक्त में बहुत करीब होता है ज़मीन के, और एक पॉइंट पर ऐसे आता है कि ये दूर तरीन फासले पर होता है. चूँकि इसका ऑर्बिट भी एलिप्टिकल है तो इसकी रेवोल्यूशन के जो पीरियड है इसमें भी एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये ज़मीन से करीब तरीन फासले पर होता है, और एक पॉइंट पर ये ज़मीन से दूर तरीन फासले पर होता है. तो यहाँ भी दो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं. जैसे करीब तरीन फासले के लिए हम पैरी जी की टर्म यूज़ करते हैं. अगेन दिस वर्ड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, पैरी एंड गी. Peri mean again near, while gi is the word used for moon in Greek word. तो perigee मून का वो डिस्टेंस ज़मीन से जब वो करीब तरीन फासले पर होता है. ठीक है जी. तो पैरी जी याद रखना आपने, पैरी जी. नेक्स्ट टर्म जो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ एपोजी. एप या एपोजी इज़ अगेन द मीनिंग ऑफ दिस इज़ फार अवे, दूर, और जी अगेन मून. तो जब ज़मीन आपके दूर तरीन डिस्टेंस पे होगी चांद से तो हम कहेंगे अपोजी जी, अपोजी. द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज़ एट इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मून इट इज़ कॉल्ड अपोजी. तो ये कुछ टर्म्स थी. ये डिस्टेंस याद करना मैटर नहीं करता क्योंकि इन डिस्टेंस का अपोजी डिस्टेंस और पैरेजी डिस्टेंस का एवरेज निकाल के हमने तो आज के लिए हम इतनी ही कैलकुलेशंस कर लेते हैं और इसको रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा कि एफीहीलियन क्या है, पेरीहीलियन क्या है और पैरेजी क्या है, अपोजी क्या है. हीलियन याद रखिए जी, हीलियन यहाँ आई मिसिंग हो गया है. हीलियन सूरज को कहते हैं यानी चांद आपका, और जी जो है मून को कहते हैं. ये याद रखने की बात है. और ज़मीन और सूरज के दरमियान एवरेज फासला जो है 150 मिलियन किलोमीटर्स है, जबकि चांद और ज़मीन के दरमियान फासला 3,84,400 किलोमीटर्स है. तो ये जो है ये हमने रिपीट कर लिए लास्ट वाली चीज़ें. कुछ रिवीजन हो जाए तो पहले हम टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं. एफीहीलियन जी, हीलियन याद रखें किसको कहते हैं जी, हीलियन सन को कहते हैं, और एफ मीन फार. इसी तरह पैरी, यहाँ हीलियन के स्पेलिंग में आई मिसिंग हो गया है. सन एंड पैरी मीन नियर. Likewise, Peri mean near and G mean moon. अगर किसी का नाम मून हो और हम उसे मून जी कहें तो इसका मतलब हो गया मून स्क्वायर, फार एंड जी मून. The distance between the sun and the earth is 150 million
किलोमीटर्स, जबकि आपकी ज़मीन और चांद यानी मून एंड द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ इज़ 3,82,500 किलोमीटर्स। जी 382500, हम इस तरह भी इसको याद कर सकते हैं। जी तो अर्थ लिख लेते हैं पहले यहाँ, सर्कमफेरेंस के लिए C लिख लेते हैं, डायामीटर के लिए हम D लिख लेते हैं और रेडियस के लिए R लिख लेते हैं। यहाँ एक लाइन ड्रॉ हो जाए और इधर हम लिखेंगे पोलर कैलकुलेशन और इधर हम लिखेंगे जनाब इक्वेटोरियल कैलकुलेशन, जबकि यहाँ हम लिख लेते हैं डिफरेंस। तो सर्कमफेरेंस, पोलर सर्कमफेरेंस क्या है? बहुत आसान था। क्या था जनाब? जी हाँ, 400 लिखना था यहाँ भी और यहाँ भी, ऐसा ही था 400, क्योंकि इक्वेटोरियल जो है डिस्टेंसेस ज़्यादा है, सर्कमफेरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ 75 आएगा, जबकि यहाँ 08, याद आया? और इन दोनों का डिफरेंस जो था 67 किलोमीटर्स। ये सब वैल्यूज़ किलोमीटर्स में है, ठीक है जी। तो इस तरह से आप एक छोटा सा पेज के ऊपर ये चार्ट बना लें, इसको दिन में 3 दफ़ा खाने से पहले और खाने के बाद इसको ज़रूर व्यू करें, तो ये आपको कभी वैल्यूज़ भूलेंगी नहीं। इसी तरह डायामीटर पे आते हैं, तो डायामीटर में 12 और 7, 1 to 7 ज़रूर लिखना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाली वैल्यू चेंज होगी। और डिफरेंस है जी कितना? यस 42 किलोमीटर्स का। ये डिफरेंस मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ कि अगर इन केस आपको कोई वैल्यू भूल जाती है और इनमें से कोई एक वैल्यू आपको याद रहती है, तो इस डिफरेंस की वजह से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप 42 इसमें ऐड अप कर लेंगे, और अगर ये वैल्यू आपको याद होगी तो आप इसमें से 42 माइनस कर सकते हैं। तो इसलिए एक लिंक सा आपस में बन जाएगा इन वैल्यूज़ के। तो रेडियस पे चलते हैं। रेडियस जो है जाहिर है डायामीटर का हाफ है। ये जनाब 6305.7 है, 63 और 57 किलोमीटर्स, और इसी तरह 6378 किलोमीटर्स। ठीक हो गया जी। तो इधर भी कॉमन जो चीज़ है वो क्या है? 63, इधर भी 63, ठीक, यहाँ 57 उधर 78, और द डिफरेंस इज 21 किलोमीटर। तो इसी तरह से आप याद करें इसको, नंबर्स को, डिजिट्स को याद करने के और बहुत से तरीके हैं, लेकिन मुझे ये पसंद है, इस तरह याद करना आसान हो जाता है। और जब आप इनकी रिपीटेशन करेंगे तो ये कभी वैल्यूज़ आपको भूलेंगी नहीं, और आप इसको किसी ऐसी जगह पे चंद दिन के लिए लिख लें जहां आपको नज़र आपकी पड़ती रहे इन नंबर्स के ऊपर, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और एक और बात याद रखें कि जो आप एग्ज़ाम के लिए नोट्स बनाते हैं, स्पेशली अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के उम्मीदवार हैं, तो बेटा आपको चाहिए कि आप किसी छोटी डायरी के ऊपर इन सब इंफॉर्मेशंस को लिखें और शॉर्ट से शॉर्ट वर्ड्स में लिखें। उसकी वजह यह है कि जब अल्लाह करे आप रिटन एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, तो आप जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको आपका बैग और इस तरह की फालतू चीज़ें नहीं ले जाते, इवन आपका मोबाइल भी आपसे ले लिया जाता है। तो फिर ये वैल्यूज़ अगर आपके पास किसी छोटी चीज़ पे लिखी हुई होंगी जो आप अपने छोटे पर्स में कैरी कर सकते होंगे, तो फिर वहाँ पे इंटरव्यू से पहले काफ़ी टाइम होता है और हो सकता है आपकी बारी लास्ट में आए, तो आपके पास जो इतना ज़्यादा टाइम होगा उसमें आप कुछ रिवाइज़ कर सकते हैं।
तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप किसी छोटे पेज के ऊपर या किसी छोटी डायरी के ऊपर इन नंबर्स को बहुत छोटी हैंड राइटिंग में लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मवाद आप उसमें लिख सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कुछ और कैलकुलेशन भी हैं जिनको अभी हमें करना बाकी है, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ओके जी, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अस्सलाम वालेकुम।